Put your attendance, students. Everyone put your attendance. Okay, Ayush, Vishal, Gunnar, everyone. Bhakti, Ayush, Goyji, Voyaji. Okay, now I will present my screen to you people. Okay, sorry. It is mathematics like this. Just a second. I am opening the book for you. Alright. Okay. So we have seen this first example, right? We have solved this first example. So before going to the next topics, what we will do, we will quickly revise a few of the things from the last class, okay? And then we can proceed. So first thing I want you people to revise is the equations of motion. Okay, so these three are the equations of motion, and I hope all of you remember these. Right? So just clear this one. Yeah. So the first equation is V is equals to U plus 80. V is equals to U plus 80, where V is the velocity, V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, and T is time. Right. For the second equation, F is equals to ut plus 1 by 2 at square. S is displacement, and all other terms are similar as it is. Okay. And for the last equation, we have d square is equals to u square plus 2as, and we know all the terms. Right. So these three equations are very important, and I hope all of you remember. Right. Now, okay. So let's go to the today's topic. That is, these four examples are for your homework portal. You can solve them at home. So the topic that we are going to learn today is Newton's laws of motion. So everybody has heard the name Newton and laws of motion as well. But what are they? Like, what are those? The laws क्या है वो आप आज सीखने वाले हैं. तो उससे पहले तो लॉज सीखने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज a static object does not move without the application of a force. Now let us suppose your cell phone. Okay, if you put your cell phone somewhere on the table, will it move by its own? क्या आपका मोबाइल फोन खुद से मतलब मूव करेगा? It won't. Voice is low. Is it, students? Voice is clear or low? Please confirm. Everyone, please confirm. No? Hello. Voice is low sometimes. Now all good. अभी ठीक है voice? My voice is clear, students. Please tell me in the chat box. Now is it clear? Yeah, it is clear now. Okay, so that is very good. So पहला क्वेश्चन क्या है कि
कोई भी चीज उसकी खुद की जगह से अपने आप नहीं हिलती है। ओके, इफ इट इज लाइक जिसमें कि जानना, राइट, अगर आपका मोबाइल टेबल पे रखा है, so it will not move unless it is on vibrate mode, right? Now the next question is, the force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. तो मतलब जितनी आसानी से हम किसी टेबल पे रखा हुआ किताब या फिर बुक उठा पाते हैं, क्या उतनी ही आसानी से हम वो टेबल उठा सकते हैं? नहीं, वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट फोर्स। नहीं, बुक उठाने के लिए हमें कम फोर्स लगेगा, लेकिन जब बात आएगी टेबल उठाने की, सो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, राइट? नाउ थर्ड वन इज, फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। मतलब जब भी हम किसी पेड़ की जो क्या कहते हैं हम ब्रांचेस उसको हिलाते हैं, सो जो फ्रूट्स रहेंगे वो नीचे गिर जाते हैं, राइट? सो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? कभी सोचा है? लाइक हम ये करते आए हैं पहले से ही, मतलब ये सब कुछ, ये चीजें सबने की है, सबको पता है, लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि व्हाई द फ्रूट्स फॉल डाउन? क्यों गिरते हैं नीचे? कैन एनीवन टेल? मतलब गलत आंसर होगा तो भी चलेगा। नाउ प्लीज डोंट टेल मी कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, या दैट इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन देखो ना, मतलब जब तुमने ओके बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो सब लोग, मतलब सब लोगों का आंसर ग्रेविटी ही रहेगा, एंड आई एग्री विथ दैट एज वेल। तो देखना, जब पेड़, मतलब पेड़ को तुमने हिलाया नहीं है, उसकी जो ब्रांच है उसको हिलाया नहीं है, पेड़ की ब्रांच को, तो तब भी फल वही थे, राइट? लेकिन तब तो वो नहीं गिरे, तब उन पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही थी क्या? ग्रेविटी तो तब भी थी ना, ग्रेविटी इज ऑल द टाइम। लेकिन जब आप उसे हिला रहे हो, when you are shaking that branch, then only the fruits are falling down. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? जरा सा सोचो, ग्रेविटी तो है, even if you are shaking the branch, then also gravity is there, and even if you are not shaking the branch, then also gravity is there, but the fruits will fall only when the branch is shaken or they are ripe. Like मतलब वो अगर पक जाते हैं बहुत ज्यादा तो फिर गिर जाते हैं, या फिर ब्रांच लाने के बाद गिर जाते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं, ये जो चीज हमने मतलब डिस्कस कर रहे हैं, so that will be answered in the laws of motion given by Newton's laws of motion. Okay, so yeah, when they are ripen, that is completely different. Okay, जब वो पक जाते हैं वो तब तो अलग ही बात है। लेकिन अभी जो आप आ रहे हो ना, वेदांत ने आंसर दिया, विशाल ने आंसर दिया कि बिकॉज ऑफ फोर्स एंड बिकॉज ऑफ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट प्रेशर एंड फोर्स, सो दीज आर what we can say little related answers. Okay, not exact answers, but these are close to the answers. Okay, so gravity is the one force, that is no doubt, that is quite obvious, right? But what are other parameters that are making the fruits to fall down? We have to understand that. Okay, so without wasting much of our time, we will just go to the Newton's laws of motion and ask himself that why does this happen. Now, if we look for a reason for the above, we realize that objects have some inertia. We have learned that inertia is related to the mass of object. Newton's first law of motion describes this very property and is therefore called the law of inertia. Okay, Newton's first law of motion is also called as law of inertia. So what is Newton's first law of motion? Fill the glass with sand. We have this activity now. Fill the glass with sand. Keep a piece of cardboard on it. Keep a 5 rupee coin on the cardboard. Now strike the cardboard using your fingers. Observe what happens. So there are lots of activities to do to understand one thing, that is, आप सब लोगों ने कैरम खेला है, जिस तरह से आप कैरम में वो स्ट्राइकर को मारते हैं ना, उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है। ओके, ग्लास का रहेगा तो दैट इज बेटर, ठीक है, कांच का ग्लास अगर रहेगा तो बेटर, और उसमें आप मतलब
उन्होंने बोला है कि सैंड भरना है, लेकिन नॉट नेसेसरी। सैंड अगर आप नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर आपको एक कार्डबोर्ड रखना है और उस पर 5 रुपीज का कॉइन रखना है, एंड यू हैव टू हिट द कार्डबोर्ड लाइक द स्ट्राइकर, मतलब जब जैसे आप कैरम में खेलते हो ना, तो उस तरीके। So you people tell me what will happen. The coin will fall into the glass or it will move with that cardboard. मतलब उस कार्डबोर्ड के साथ में वो जो 5 रुपीज का 10 रुपीज का हमने कॉइन रखा है, वो डायरेक्टली उस कार्डबोर्ड के साथ में चला जाएगा जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं, या फिर वो ग्लास में गिरेगा। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन और व्हाट डू यू थिंक? प्लीज टेल मी। इन द ग्लास, it will fall in the glass. Okay, that is first. The coin will fall in the glass. Okay. कॉइन जो है वो ग्लास में फॉल होगा, ऐसा 2 लोगों का कहना है यहाँ पे, कादम्बरी और विनीत का। What about others? See, I need responses from everyone. Then and then the class becomes interesting. तो सवाल ये है विशाल कि ओके आयुष ठीक है, वो ग्लास में ही पड़ेगा। Now what is the reason? देखो कार्डबोर्ड तो चला गया, और कार्डबोर्ड के ऊपर लाइक सी, हम जब किसी भी मतलब कार में वगैरह बैठते हैं, कार चलती है तो हम भी चलते हैं ना उसके साथ। Yes, but sometimes the coin gets flipped away. Okay, sometimes the coin gets flipped away. That is also possibility. I'm not denying that. Okay, ये हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, अगर आपका जो स्ट्राइक है वो सही बैठता है, तब द मोस्ट पॉसिबिलिटी इज कि वो जो कॉइन है वो ग्लास में ही गिरेगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्राइकिंग, लाइक मतलब तुम जिस तरह से उसे स्ट्राइक कर रहे हो ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। इट इज नॉट कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% वो ग्लास में ही गिरेगा। इट डिपेंड्स ऑन द जब किस तरह से आप उसे हिट कर रहे हो। सो व्हाट व्हाई दिस इज हैपनिंग? ब्रांच लाने पे फल गिर रहे हैं, कॉइन जो है वो ग्लास में गिर रहा है, उसे तो उसके कार्डबोर्ड के साथ में जाना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड the first law of motion given by Newton. Before that, we will see what is balanced and unbalanced force. You must have played tug of war. Now, all of you must be knowing what is tug of war. Tug of war is nothing but Rassi case. Okay, Rassi case. So, long as the forces applied by both the sides are equal, that is balanced, the center of the rope is static in spite of applied forces. तो आपने देखा होगा कि मतलब अगर दोनों साइड पे अगर मतलब सेम ही स्टूडेंट्स है, लाइक सेम स्टूडेंट्स, नॉट इन द, आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मतलब यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 हो सकता है कि राइट साइड में जो 10 है वो बहुत तगड़े या फिर पहलवान टाइप के 10 स्टूडेंट्स हो, और जो लेफ्ट साइड में है वो थोड़े से लुकड़े टाइप के स्टूडेंट्स हो। सो अगेन दैट इज नॉट बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मींस दोनों सब तरफ जो है वो सेम ही टाइप के स्टूडेंट्स है या फिर पर्सन है। सो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस द सेंटर ऑफ द रूप विल नॉट मूव आइदर वे, किसी भी और नहीं जाएगा, वो सेंटर में ही रहेगा, वो स्टैटिक रहेगा। डिस्पाइट द फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड, मतलब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, राइट? राइट साइड से भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड से भी फोर्स लग रहा है, फिर भी वो जो सेंटर ऑफ द रोप है वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर कैंसिलिंग ईच आउट, राइट? लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है उसे राइट साइड वाला जो फोर्स है वो कैंसिल आउट कर रहा है। तो देयर इज एक्चुअली नो फोर्स ऑन द रोप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. On the other hand, when the applied forces become unequal, that is unbalanced, a net force gets applied in the direction of the greater force and the center of the rope shifts in that direction. अभी मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स थे दोनों तरफ, राइट साइड में 10, लेफ्ट साइड में 10। सो लेफ्ट साइड के 5 स्टूडेंट्स हमने जो है राइट साइड में ट्रांसफर कर लिए, राइट? तो क्या हुआ? राइट साइड में 15 स्टूडेंट्स हुए, लेफ्ट साइड में 5 स्टूडेंट्स हुए। तो क्या होगा? टेल मी। वो 15 स्टूडेंट्स उन 5 स्टूडेंट्स को घसीटते हुए ले जाएंगे, बराबर ना, उस रस्सी के साथ में। सो दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, isn't it? That is unbalanced force, बैलेंस नहीं है उसमें। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो here is the first law of motion given by Newton. An object continues to remain at rest or in state of uniform motion along a straight line
unless an external unbalanced force acts on it. So what are the important words here? Remains at rest or in state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं हो रहा है, तो वो मूव नहीं होना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है, अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइज ऑन इट. आई होप ईच एंड एवरी वर्ड इज क्लियर टू यू. बराबर ना? तो अभी आप कहोगे सर, आपने कहा अगर कोई मतलब ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो वो स्टैटिक रहना चाहता है, दैट इज गुड. मतलब मैं जब सुबह उठता हूँ तो बेड से मुझे उठने की इच्छा नहीं होती है, सो मैं स्टैटिक हूँ, वहां पे स्टैटिक रहना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, राइट? दैट इज एक्सेप्टेबल. लेकिन सर आपने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है या फिर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता. ऐसा तो नहीं होता है ना सर. लाइक अगर मतलब मैं साइकिल के 4 पैडल मारता हूँ तो मुझे फिर से बाद में पैडल मारते रहना पड़ता है, साइकिल रुकने लग जाती है, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? वो तो मोशन में ही रहनी चाहिए ना. सो व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई द साइकिल इज नॉट इन द मोशन? कैन एनीवन टेल इन द चैट बॉक्स और बाय टर्निंग ऑन योर माइक? साइकिल में हमें पैडल मारना पड़ता है, मोटरसाइकिल में हमें पेट्रोल डालना पड़ता है टू कीप इट मूविंग. एक बार चला दिया तो फिर चलता ही रहना चाहिए ना उसमें, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कैन एनीवन ट्राई? ट्राई करो, बताने की कोशिश करो, माइक ऑन करो या फिर चैट बॉक्स में लिखो. व्हाई डज दिस हैपन? ये चीज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्यों फॉलो नहीं करती है? जब हम कोई मान लो कि बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल मूविंग में है, तो वो मूविंग में ही रहना चाहिए ना, वो रुकता क्यों है? उसे रुकना तो नहीं चाहिए ना. Because of acceleration. Okay, not the correct answer. फ्रिक्शन का नाम सुना है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन. तो जब आपकी साइकिल मूव हो रही है ना, तो आपके साइकिल के जो टायर्स है, द टायर्स आर इन कांटेक्ट विथ रोड, and what is happening? The friction is happening, right? So वो जो रोड है ना, वो रोड आपके साइकिल को रोक रही है या फिर एनीथिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्लियरली friction is the unbalanced force which is causing the cycle or motorcycle or the ball to stop. हमने तो कहा ना कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तभी जाके वो बॉडी मोशन में रहेगी या फिर स्टैटिक रहेगी, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो अभी आप मुझे बताना कि सर अभी ये तो हमें समझ में आ गया कि साइकिल चल रही है तो वो रुक क्यों जाती है. तो आप मुझे एक चीज बताइए सर कि साइकिल अभी रुकी हुई है, so it should be in like static motion always, right? और वो रहती भी है, लेकिन बाकी सारे फोर्सेस भी तो है सर, तो उन फोर्सेस की वजह से उसकी स्टैटिक पोजीशन चेंज होनी चाहिए ना. तो द बेस्ट एग्जांपल इज यू. जब भी कोई साइकिल स्टैटिक पोजीशन में है तो आप क्या करते हो? उसे पकड़ते हो, पैडल मारना शुरू करते हो. दैट मीन्स यू आर गिविंग फोर्स टू दैट साइकिल टू मूव, isn't it? यू आर गिविंग दैट साइकिल टू मूव. मतलब स्टैटिक साइकिल को आप मूविंग में ला रहे हो और मूविंग साइकिल को वो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक में लाना चाहता है. सो बोथ द लॉज आर करेक्ट हियर, isn't it? Now let's just think about the question that I had asked you कि जब हम ब्रांच हिलाते हैं ना पेड़ की, तभी जाके वो फल गिरना शुरू होता है, या फिर वी आर नॉट कंसिडरिंग द केस कि जब फल पकते हैं तो वो नीचे गिरते. दैट इज ऑब्वियस, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी शेक द ब्रांच देन द फ्रूट्स फॉल डाउन. ऐसा क्यों होता है? नाउ अभी जो आपके फ्रूट्स है जो पेड़ पे लटके हुए हैं, दे आर इन अ स्टैटिक पोजीशन, isn't it? They are in a static position, right? Right or wrong? Yes or yeah, good.
जब हम उसे शेक कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू गेट देम इन मोशन। लेकिन स्टैटिक में है तो वो स्टैटिक में रहना चाहता है, इसी वजह से क्या होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है उस फल पे, राइट। सो वो मूविंग में आ जाता है, तो मूविंग में आने के बाद में वो मूविंग में रहना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट वो अगेन मतलब स्टैटिक होना चाहता है। सो इस तरह का जो अनबैलेंस फोर्स का सिलसिला है वो उस पर शुरू रहता है, एंड लास्टली व्हाट हैपेंस, इट ब्रेक्स फ्रॉम द ब्रांच एंड इट फॉल्स डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी का फोर्स तो अप्लाई होता है उस पर, दैट इज ऑब्वियस, दैट इज मतलब वो तो 100% ट्रू है, लेकिन व्हेन एट लास्ट, एट द एंड, इजंट इट। तो इसी तरीके से अभी आप देखो ना, मतलब कभी आप गाड़ी में जा रहे हो, तो क्या होता है कि गाड़ी एकदम फास्ट चल रही है एंड ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स, तो क्या होता है, आप ऐसे आगे चले जाते हो, राइट। मतलब सारे के सारे पैसेंजर्स, नॉट ओनली यू, एवरीबडी। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज अलोंग विद द व्हीकल, उस गाड़ी के साथ साथ हम भी मोशन में रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक्स लगाने की वजह से उस गाड़ी का मोशन तो रुक गया, लेकिन वी आर टेंडिंग टू बी इन मोशन, सो दैट्स व्हाई वी गेट पुश्ड समवॉट। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा मूव हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। Vinith, can you tell me, you are joining from the 4 different devices, why is it so? Actually, there is no issue for me, but I'm just asking. Okay. Yeah. So, I hope you understand the first law of motion. Okay. First equation of motion is different. First law of motion is different. These two are different things. Don't mix up. Okay. First law of motion is, I will read it again. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external force acts on it. When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. Actually, there are a number of forces acting on it, but they cancel one another so that net force is zero. Newton's first law explains the phenomena of inertia, that is, the inability of the object to change its state of motion on its own. It also explains the unbalanced forces which cause a change in the state of an object at rest or in uniform motion. All instances of inertia are example of Newton's first law of motion. So what is inertia? Okay, from PC and that. Okay, no issues to me. Good, no problem. So, Newton's second law of motion. Now, see, what is inertia, or what is the fact that, like, if the object is static, that does not mean there is no force acting on it. राइट, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रह रहा है, दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट डज नॉट मीन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सो हमने पहले ही एग्जांपल में देखा था ना कि टग ऑफ वार में जब दोनों साइड से सेम फोर्स लगाया जाता है उस रस्सी को, तो वो रस्सी का जो सेंटर है दैट सीम्स टू बी स्टैटिक, बट दैट इज नॉट, दैट इज स्टैटिक, एक्चुअली दैट इज स्टैटिक। Okay, why? Because even though forces are acting on that rope, but they are balanced forces and they are cancelling each other. मतलब उस रस्सी पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो बैलेंस फोर्स है, एंड वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो सेंटर है उस रस्सी का, जो हमें मतलब गांठ रहती है ना, कि वो जो गांठ है वो उस लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। वो लाइन से राइट में जाएगी तो राइट टीम जीतेगी, लेफ्ट में जाएगी तो लेफ्ट टीम जीतेगी, है ना, उस तरीके से। Now let's take the second law, that is Newton's second law of motion. So here are few questions before we go to the second law. Ask your friend to drop one plastic and one rubber ball from same height. You catch the balls. Which ball was easier to catch and why? Ask your friend to throw ball towards you at slow speed. Try to catch it. Now ask your friend to throw the ball at high speed towards you. Try to catch it. Which ball could you catch with greater ease? Why? तो फर्स्ट इंस्टेंस कि हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉल लेना है एंड एक
लेट अस से लेदर बॉल लेना है या फिर रबर का बॉल लेना है, एंड वी हैव टू ड्रॉ बोथ द बॉल्स फ्रॉम सेम हाइट, और नीचे से आपको कैच करना है। सो आप में से मतलब आप सारे लोग बताइए कि कौन से बॉल को कैच करना इजी जाएगा, रबर बॉल को या फिर प्लास्टिक बॉल को? Which ball will be easy to catch? Rubber ball will be easy to catch? I don't think so. Plastic ball, plastic ball, plastic ball will be easy to catch. आपको पता है, आप क्रिकेट तो देखते हो ना, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो विराट कोहली है, एम एस धोनी है, या फिर सारे जो प्लेयर्स है, उनके हाथों पे बैंडेजेस लगाए होते हैं, देखा है? बैंडेजेस लगाए होते हैं ना वो, तो वो शौक से नहीं लगाते वो बैंडेजेस। वो जो उनका लेदर बॉल है ना, वो इतना मतलब हार्मफुल है, या फिर व्हाट वी कैन से इतना डेंजर है ना वो, कि वो उनको लगता, हाँ या हार्ड बॉल, तो वो उनको लगता रहता है, राइट? सो इट इज नॉट इजी टू कैच रबर बॉल, राइट? लेकिन जब आप मतलब स्कूल में खेलते हो या सीजन बॉल, तो जब आप प्लास्टिक बॉल से खेलोगे, तो आप मुझे बताइए कि आप कितने भी हाइट से उस प्लास्टिक बॉल को फेंकिए, कैच करते समय आपको उस तरह की इंजरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, इंजरी नहीं हो सकती। So plastic ball is easy to catch, right? Now, second question. मान लीजिए कि अभी आपके पास रबर बॉल ही है, तो आपके फ्रेंड को आपको क्या कहना कि तुम क्या करना, थोड़ा धीमे से बॉल डालना, एंड देन यू कैच, इट विल बी इजी फॉर यू। लेकिन वही अगर शोएब अख्तर आके आपको बॉल डालेगा, राइट? शोएब अख्तर का नाम तो आपने सुना ही होगा, शोएब अख्तर का नाम नहीं सुना है तो जसप्रीत बुमराह, हमारा जो लेटेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर है ना, जसप्रीत बुमराह, उसका तो नाम आपने सुना ही होगा। सो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग डाल रहा है आपको, सो आप खेल पाओगे उसे या फिर कैच नहीं पाओगे? नो, व्हाई? बिकॉज ही इज वेरी फास्ट, isn't it? He is very fast. You can't even see the ball. Playing is on the different level, right? So दोनों ही चीज में हमने क्या सीखा? पहला जो मैंने इंस्टेंस आपको बताया था प्लास्टिक बॉल का और रबर बॉल का, इसमें रबर बॉल का मास ज्यादा है, प्लास्टिक बॉल का मास कम है। एग्री विथ मी? करेक्ट? नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल में बॉल तो सेम ही है, लेट इट बी प्लास्टिक बॉल, लेट इट बी रबर बॉल, लेट इट बी लेदर बॉल, लेकिन आपका फ्रेंड जब आपको बॉलिंग डाल रहा है, देन ही इज बॉलिंग स्लो, बट जब जसप्रीत बुमराह डाल रहा है, ही इज बॉलिंग फास्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन वेलोसिटी, मास इज सेम। तो आपने देखा कि मास अगर डिफरेंट रहेगा तो भी आपको हो सकता है कि इजी या फिर हार्ड जाए, स्पीड अगर सेम या फिर डिफरेंट रहेगा तो भी दिक्कत हो सकता है, राइट? सो व्हाट आर द टू फैक्टर्स वी आर लर्निंग हियर? फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी, एंड यू ऑल नो व्हाट इज मास एंड वेलोसिटी, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दैट, राइट? सो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो ये सब तो सर हमने कर लिया, तो इसका कंक्लूजन क्या है? The effect of one object, now I'm reading this, okay? The effect of one object striking another object depends both on the mass of the former object and its velocity. This means that the effect of force depends on the property related to both mass and the velocity of the striking object. Okay, so ये जो यहाँ पे इतना लंबा पैराग्राफ दिया है, इसका हमारे एक्सपेरिमेंट से क्या संबंध? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? व्हाट आर टू ऑब्जेक्ट्स? यहाँ पे तो कहा है कि वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग द अदर ऑब्जेक्ट। वेयर इज अदर ऑब्जेक्ट? वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, दैट इज बॉल। वेयर इज अदर ऑब्जेक्ट? can anybody tell? Hand, obviously hand. Your hand is the second object, palm, right? Very good. सो बॉल आपके हाथ में स्ट्राइक हो रहा है, सो बॉल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, योर हैंड इज द, सॉरी, बॉल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, योर हैंड इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट दे से, सी, the effect of one object striking another object depends both on the mass of the former object and its velocity. Mass and the velocity of former object. Which is our former object? Our former object is ball, right? तो उसका मास और उसका जो वेलोसिटी है
वो मैटर करेगा. Now this means that the effect of the force depends on the property related to both mass and velocity of the striking object. This property was termed momentum by Newton. तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो फोर्स पे इफेक्ट होता है किस चीज का, मास का और वेलोसिटी का. I'm so sorry guys, I had a call. Okay, so I hope I'm clearly audible, right? Don't know who is calling so late night. Okay, good. I'm calling. Okay, let me just put on the D&D. Okay, good. Yeah. So where were we? Yeah. So the effect on force of an object is related to mass and velocity, momentum. Yeah, good. Thank you. Thank you very much. So momentum, right? So momentum is denoted by P. Momentum is the product of mass and velocity of object. Clear? So you can write it down in your notebook. Momentum P is equals to M multiplied by V. Okay, momentum is a vector quantity. Now, who can tell me why momentum is a vector quantity and not the scalar quantity? Why momentum is the vector quantity and not the scalar quantity? Any one of you can tell. Turn on your mic. No issues to me. You can turn on your mic and tell me. Anyone? No one? Momentum is the vector quantity because momentum P is equals to mass M multiplied by what? Multiplied by velocity V, because this needs direction. Yeah, that is quite a common answer. It needs velocity, but because there is velocity, and we all know that velocity is also a vector quantity. So velocity, yeah, it has both magnetic. Yeah, that can be the. See, these are general answers, right? जब मैं vector की बात करता हूँ, so it is obviously it needs direction, it needs magnitude. But what in case of momentum? We cannot see momentum. We are just like we are trying to imagine it, isn't it? So we have to relate with some other things. तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्लियरली हमें दिया है कि momentum is equals to mass into velocity, and we know that velocity is vector quantity. So vector quantity अगर present है तो momentum भी vector quantity ही रहेगा. Okay. Now let's go further. The rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of force. You can write it down the statement. This is the second law of motion given by Newton. The rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of force. तो इसे हम थोड़ा सा और डीपली सीखने की कोशिश करें. Suppose an object of mass m has an initial velocity u. Okay, so मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, देखना. When a force F is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v. So initial momentum of the object. अभी initial momentum क्या है? Mass into initial velocity. Initial momentum यानी mass into initial velocity, that is u. And its final momentum after t is m into v, that is v is the final velocity. So rate of change of momentum, try to understand what does this mean. This means that कि momentum कितना change हुआ है, what is the rate of change of momentum. ठीक है, उसका रेट क्या है, मतलब एक टाइम फ्रेम अगर हम लेते हैं तो उस टाइम फ्रेम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, राइट. अगर हम पेट्रोल की बात करें, राइट, व्हाट इज द रेट ऑफ पेट्रोल. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेट ऑफ पेट्रोल, यू विल टेल 100 रुपीज पर लीटर, और यू विल से 100 रुपीज. 100 रुपीज कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना. रेट ऑफ पेट्रोल इज 100 रुपीज पर लीटर, राइट. सो उसी तरीके से
मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, 10 सेकंड में चेंज हो रहा है, 50 सेकंड में चेंज हो रहा है। So there has to be time limit, right? So इतने इतने टाइम में इतना इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, सो जिस तरह से हम पेट्रोल के बाद में क्या लगाते हैं पर लीटर, उस तरह से हम मोमेंटम के मतलब मोमेंटम हम किसके प्रोपोर्शन में मेजर करते हैं? टाइम की। ओके, सो सी, पहले तो हमें दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। So see, the formula is rate of change of momentum is change in momentum per time unit, right? Per unit time. This is general formula. That is कितना change हुआ और कितने time में हुआ, right? कितना change हुआ, कितने time में change हुआ. So how can we calculate change in momentum? So this is final momentum minus initial momentum, right? हम निकालते थे ना final velocity minus initial velocity is equals to what? Acceleration. Acceleration का यही formula है ना, rate of change of velocity per time instance, right? Yeah. So similar way, तो mv minus mu divided by t, m हम कॉमन निकालेंगे, v minus u by t is equals to a है, राइट? तो अभी यहाँ पे हमें फिर से न्यूटन का ही पहला जो इक्वेशन है ना मोशन का, ये यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? v is equals to u plus at है, राइट? सो इस u को हम यहाँ पे ले आएंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी रहेगा, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? a रहेगा। तो यहाँ पे देख लो जरा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू a हम लिख सकते हैं, तो यही लिखा है m एज इट इज एंड a, isn't it? सो या उसके बाद अभी आगे क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सो देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू ए। व्हाट इज m इंटू ए? कभी सुना है इस फॉर्मूला के बारे में? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स। मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स। ओके, अगर आपको पता नहीं था तो लिख लेना यहाँ पे। सो mass into acceleration is directly proportional to f, right? So f is equals to k into ma, so f is equals to m into a। लिख लेना यहाँ पे, आपको लिख लेना ये force is equals to mass into acceleration। Actually this m into a is what? This is rate of change of momentum, but it is directly proportional to force, so we have written this। so proportional के बारे में जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। सो द फॉर्मूला वी हैव गॉट दैट इज f इज इक्वल्स टू m इनटू a। कोई भी आपको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा। ओके, आपको क्या करना है? सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बताते आना चाहिए, और ये फॉर्मूला अगर आप लिखोगे ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मोर देन इनफ। कभी भी नहीं भूलना ये फॉर्मूला, ठीक है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहा गया, तो ये फॉर्मूला आपको लिखते आना चाहिए। ओके, गुड, ऑल गुड। सो consider two objects having different masses which are initially at rest. The initial momentum for both is 0. Suppose a force acts for time t on both objects. The lighter object starts moving faster than the heavier object. However, from the above formula, we know that the rate of change of momentum, that is force in both objects, is same, and the total change in their momentum will also be the same, that is ft. Thus, if the same force is applied on different object, the change in momentum is the same. तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ पढ़ा, तो मान लो कि अभी ना चलिए एक 10 kg का बॉक्स है, ओके, और एक 50 kg का बॉक्स है। ओके, अभी आई डोंट नो आप में से कोई 50 kg उठा पाएगा या फिर नहीं। तो मान लीजिए एक 10 kg का बॉक्स है, 50 kg का बॉक्स है। तो आपने क्या किया, 10 kg का जो बॉक्स है ना, वो आपने उठा लिया और वो आप 5 किलोमीटर तक मतलब चल दिए। ओके, 5 किलोमीटर आप जा पाए, लेकिन आपने 5 किलोमीटर जाके वो बॉक्स रख दिया। अभी आप 50 kg का बॉक्स उठाने के लिए आए,
राइट, सेम पर्सन। तो वो बॉक्स उसने 1 ही किलोमीटर ले गया, 50 kg का बॉक्स वो 1 ही किलोमीटर ले गया। तो क्या इसका मतलब होता है कि सेकेंड इंस्टेंस में आपने काम कम किया है? बताना जरा। पहले इंस्टेंस में तो आप 5 किलोमीटर चले गए, लेकिन दूसरे इंस्टेंस में आप 1 ही किलोमीटर गए, तो क्या आपने काम कम किया है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट ना, आपने काम कम नहीं किया है। भले ही आप 5 किलोमीटर चले गए हो, लेकिन आपने 10 kg का बॉक्स लेके गए ना। लेकिन सेकेंड इंस्टेंस में आप 50 kg का बॉक्स ले रहे हो। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर 1 kilometer, देन ऑल्सो दैट इज लाइक वेरी बिग वर्क, इज इट? सेम इज अबाउट द मोमेंटम। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास है, दोनों पे अगर सेम फोर्स लगेगा, इवन दो दे विल मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, मे बी मतलब उनका जो मूवमेंट रहेगा वो सेम नहीं रहेगा ना, बिकॉज देयर मास इज नॉट सेम, बट दैट डज नॉट मीन्स द मोमेंटम इज नॉट सेम, द चेंज इन मोमेंटम इज नॉट सेम, इट इज सेम। समझ रहे हो? मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ रहे हो ना? यस और नो? किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो लिखो चैट बॉक्स में। जो मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ आपको समझ में आया? नहीं है कंफ्यूजन? कादम्बरी को नहीं है, बाकी लोगों को? नो, भक्ति वेरी गुड। चलिए चलिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। नाउ ये जो बॉक्स में दिया है ना, ये हम पढ़ेंगे हम। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। Newton, and the force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square is an object of mass 1 kg is called 1 Newton. 1 Newton is equals to 1 kg into 1 meter per second square. In CGS system, the unit of force is Dian, and Dian is equals to the force necessary to cause an acceleration of 1 centimeter per second squares in an object of mass 1 gram is called 1 Dian. So एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है, ध्यान में रखनी है, that is in CGS system the unit of force is Dian. न्यूटन तो सबको पता है, न्यूटन तो पता होगा, ऐसा यूनिट में है ना, तो डायन में भी आप कोई ओलंपियाड की एग्जाम दे रहे हो, कोई स्कॉलरशिप की एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इज इट? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? और आपको दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, दोनों के मतलब 3-4 रहेंगे वैसे तो, लेकिन ये दो तो रहेंगे, कौन से? न्यूटन और डायन। तो आप तो कहेंगे मैंने डायन कभी सुना ही नहीं, सो न्यूटन मैंने सुना है, तो न्यूटन रहेगा। सो इट मे हैपन, ओके। सो दीज आर द थिंग्स। फिर जो ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लाइक जो मोस्टली इग्नोर करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। आई होप आप लोगों में से किसी ने दिया होगा तो आपको पता होगा, ओके। Now, the last topic for today is Newton's third law of motion. Before that, we have one question. Why is there a thick bed of sand for a high jumper to fall on after his jump? तो जो लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप करते हैं ना, तो उनके नीचे एक बेड ऑफ सैंड रहता है, मतलब ऐसे जिसे हम रेत कहते हैं ना, तो रेत का एक बहुत बड़ा व्हाट वी कैन से पाइल रहता है। सो व्हाई इज इट देयर? क्यों होता है ऐसा? बताना जरा, व्हाई इज इट देयर? कोई बता सकता है? क्वेश्चन समझ में आया? So they cannot get hurt, okay, to avoid injury. Who will injure them? उनको कौन इंजोर करेगा? द लैंड देयर, राइट, मतलब जो जमीन है ना वहां पे, हार्ड जमीन, वो उनको इंजोर कर सकती है ना? तो इसका हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या लेना देना है? So see one thing, take a plastic boat and make a hole at its rear end. Inflate a balloon and fix it on the hole in the boat. Release the boat in the water. What happens to the boat as the air in the balloon escapes slowly and why? So I will try to tell you the
प्रोसीजर, ओके, हाउ यू कैन डू दैट। सो आई होप कि आप में से सब लोगों को पेपर बोट्स बनाने आती है। पेपर बोट सबको बनानी आती है, एवरीबडी कैन मेक द पेपर बोट। ओके गुड, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है देखो, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, तो ये आपकी बोट है, इस तरह की आपकी बोट है। ओके, ऐसे ही बोट बनाते हो आप या फिर कांटे वाली बोट बनाते हो? ऐसे कांटे वाली भी एक बोट रहती है ना, मुझे तो नहीं आती है बनानी, वो थोड़ी सी हार्ड होती है कांटे वाली बोट बनानी, बराबर। मुझे नॉर्मल वाली बोट आती है बनानी। सो या कोई भी बोट ले लीजिए, नॉर्मल वाली ले लीजिए, मैं नॉर्मल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, इस बोट में हमें यहाँ पे एक होल करना है। ओके, बैक साइड में एक यहाँ पे होल करेंगे और एक स्ट्रॉ लेना है। स्ट्रॉ एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रॉ होना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रॉ आप इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉ आपने यहाँ पे रख दिया इसके, इस बोर्ड के पीछे होल करके। तो आपको क्या करना है, एक बलून लेना है, उस बलून में हवा भरनी है, और वो जो बलून है ना, वो बलून आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, ये जो बलून बलून रहेगा ना, ये यहाँ पे आपको लगाना है, और आपको इस नाव को पानी में छोड़ना है। व्हाट विल हैपन, बलून को छोड़ देना है, बलून को बांधना नहीं है, मतलब बांध सकते हो आप, उस स्ट्रॉ के साथ में बांध सकते हो ताकि वो निकल ना जाए। सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप बोट वो पानी में रखते हो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही बलून से हवा बाहर निकलनी शुरू होती है, सो व्हाट विल हैपन, द बोट विल गो अहेड वेरी fast, isn't it? हेलो, am I audible? या गुड, ऑडिबल ना, ठीक है। कभी कभी इंटरनेट चला जाता है बीच में। सो सी, इन दिस सिनेरियो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि जब आप उस बलून को छोड़ दोगे ना, इस बलून को जब आप छोड़ दोगे ना, सो योर बोट विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट। नाउ व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट, कैन एनीवन टेल? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? चलिए, तो अभी अभी के लिए ना 9:47 हुए हैं। तो दिस इज फॉर योर एक्टिविटी, आप घर पर बैठकर इसे कर सकते हो, लेकिन घर पर स्ट्रॉ नहीं है तो स्ट्रॉ लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप घर में जुगाड़ कर सकते हो, जो कुछ करना है वो करना है, घर में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। नाव छोड़ने भी तालाब पे जाने की जरूरत नहीं, नदी पे जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही कहीं पे भी आप टैंक में वगैरह वो सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, सो एक्सपेरिमेंट करना है, एंड ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारा जो हमारा एक लेसन, मतलब लेसन जो है वो हमारा एक और लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दैट we can start the next lesson. So yeah, thank you and bye bye for today. Now you can leave. Yeah, bye. Bye bye everyone. Leave the meeting. Class is over. Yeah, bye. Good night. Vineet, Vishal, leave the class. Okay, is it your birthday today, Vishal? Yeah, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, sorry, I didn't know. Okay, happy birthday, Vishal. Yeah, welcome, welcome. Enjoy. Bye. Bye, 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 bye. Bye, Vishal. Leave the meeting. Bye.